ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੇ ਰੋਗ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਸਤਾਵੇ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਕੁਟੰਬ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਕੁਟੰਬ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਬੈਠੇ ਨਾ ਸੋਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਝ ਬਣਨੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ परमात्मा साडी झोली विच सफलता जरूर पावेगा। चिंता नहीं करनी, मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है। ये दूसरी तब्दीली जिहड़ी है गुरमुख दे हिरदे घर विच आउंदी है कि वो मेहनत करता है, फिर फल की इच्छा नहीं रखता। उन्हें पता है ये फल जिहड़ा है परमात्मा ने पाउणा है, ज्यों ज्यों असीं मेहनत करांगे त्यों त्यों फल साडी झोली विच पावेगा। तीसरी तब्दीली जिहड़ी मनुख दे अंदर आउंदी है, जिहड़ा नाम जपदा है, जिहड़ा परमात्मा नूं नेड़े जाणदा है, क्योंकि वो रोज़ पढ़दा है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह शब्दां नूं रोज़ पढ़न करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तब्दीली ये आउंदी है। फिर वो रिजक की तलाश तो जरूर करता है गुरमुखो, पर रिजक का फिक्र नहीं करता। धन गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द है, सैल पत्थर मैं जंत्यो पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। सैल का मतलब होंदा चट्टान। चट्टानां दे विच, पत्थरां दे विच वो परमात्मा जिहड़ा है उस कीट नूं भी रोजी दे रहा है। भलिया तैनूं रोजी नहीं देवेगा। इस संसार दे विच वेखो झाती मार के गुरमुखो, उन्हें संसार के जीव ने जिन्नी रोजी परमात्मा ने बख्शिश की हुई है, पता नहीं किन्ने क पदार्थ परमात्मा ने सानू दिते हुए ने, तो फिर भी असी फिक्र करिए। फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करनी। गुरमुखो मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है, तो उस परमात्मा नूं सिमरना है, उहदे नाल हमेशा रहना है। फिर रिजक दी ਉਹਦੇ अंदर चिंता नहीं हुंदी। सैल पत्थर मैं जंत्यो पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। सतगुरु जी अगे चल के प्रमाण करते हैं, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो धरे। हे मेरे माधो, जिन्होंने सत संगत की प्राप्ति हो गई, सच जानियो वो परमात्मा ने उसनूं भव सागर तो पार उतारा करवा दिता है। गुरमुखो चौथी तब्दीली एक होर हुंदी है, वो की है कि वो आप चिंता नहीं करता, उसनूं पता है। वैसे भी सानू चिंता करने की लोड़ नहीं गुरमुखो। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा ने सानू बनाया है, तो साडा रिजक भी उन्हें इस संसार दे विच पहुंचदा का कीता होया है। गुरमुखो बच्चा हजे संसार ते आउंदा नहीं, तो उहदा रिजक जिहड़ा है उस तो पहला ही आ जाता है, तो फिर फिक्र किस चीज़ की है? असी संसार ते आए हुए हैं, तो साडा रिजक भी सतगुरु सच्चे पातशाह ने इत्थे पहुँचदा कर दिता है। हाँ, सानू लभना पवेगा, मेहनत करके सानू लभना पवेगा। हाथ दिते ने, पैर दिते ने, रसना दिती है, दिमाग दिता है। सतगुरु कहते लभ, जे लभेगा तो तेनू वो सारा ही रिजक मिल जाएगा, वो पदार्थ मिल जाएंगे। इस करके रिजक की चिंता नहीं करनी गुरमुखो। ऐसे गुरमुख फिर रिजक की चिंता नहीं करते, तो चिंता कीती भी क्यों जावे। सतगुरु सच्चे पातशाह फरमान करते हैं, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी ही है, जल में जंत उपायन तिना भी रोजी दे। कहते जल दे विच भी जिहड़े जीव ने उन्हां नूं ते परमात्मा रोजी दे ही रहा है। चट्टानां विच, पत्थरां विच ही परमात्मा रोजी नहीं दे रहा, जल विच भी परमात्मा रोजी दे रहा है। बेशक जल दे विच जियां का आहार जी है, भाव के जीव नूं जीव ही खाता है, पर परमात्मा ही तो सब कुछ कर रहा है ना गुरमुखो। ये सब कुछ परमात्मा ही तो कर रहा है। वो जलां दे विच भी रिजक दे रहा है, फिर फिक्र किस चीज़ की है? कछु कमी देखियो गुरमुखो,
कशु कमी बरेते दे विच जा करके आंडे देंदी है, आप समुंदर विच रहिंदी है, आप जल दे विच रहिंदी है, आप ध्यान रखदी है उस आंडियां दा ते परमात्मा किरपा करदा है, उस आंडियां दे विचों बच्चे निकल आउंदे ने। थोड़े जे बच्चे वड्डे हुंदे ने गुरमुखो, ते कशु कमी आप उन्हां बच्चियां दे कोल जांदी है ते एक हैरानीजनक एक होर घटना जिहड़ी वापरदी है, वो की है कि जिहड़े बच्चे ने वो मां नूं पहचान लैंदे ने। हालांकि बच्चियां नूं मां ने नहीं देखिया ते मां नूं बच्चियां ने नहीं देखिया, पर पहचान फिर भी हो जाती है। पहचान कौन कराउंदा है? परमात्मा ही ते कराउंदा है, रब ही ते कराउंदा है, मालिक ही ते कराउंदा है। कच्छु कमी अगे अगे बच्चे पिछे पिछे आउंदे ने ते गुरमुखो फिर जल दे विच तैरना भी सिखाउंदी है, रहना भी सिखाउंदी है, उपजीविका किस तरह चलाउणी है वो भी सिखाउंदी जे। ये सारा कुछ कित्थों मिलता है गुरमुखो? ये सारा कुछ परमात्मा सच्चे पातशाह ने पहला ही सोची बख्श के भेजी हुंदी है, भावें वो इंसान होवे ते भावें वो जानवर होवे। सतगुर सच्चे पातशाह एक होर उदाहरण देंदे ने, उड़ै उड़ आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कौन खुलावे कौन जगावे मन में सिमरन करिया। सतगुर सच्चे पातशाह दूजी उदाहरण समझाते ने कि कुंजां जिहड़ियां ने अपने बच्चियां नूं छड्ड के दूर चले जांदियां ने, उन्हां नूं कौन खवांदा है ते कौन चुगांदा है? उन्हां नूं परमात्मा ही खवांदा है ते उन्हां नूं चुगांदा भी परमात्मा ही है। उन्हां दे जीवन की रखिया कौन करदा है? परमात्मा ही ते रखदा है। मावां ते किते दूर गईयां होईयां ने, पर गुरमुखों मावां दा ध्यान अपने बच्चियां 'च है। उस ध्यान दे खातर ही परमात्मा उन्हां ते कृपा दृष्टि कर दिंदा है। जे साडा भी ध्यान एडा किते परमात्मा वल हो जावे, जिन्ना ध्यान कुंजां अपने बच्चियां वल रखदियां सन, ते गुरमुखो रब कोई दूर नहीं, रब बड़ा नेड़े है। बस ज्यों ज्यों असीं उस परमात्मा के गुण गान करते रहांगे, ज्यों ज्यों परमात्मा नाल इकमिक होवांगे, त्यों त्यों साडा जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। एक होर तब्दीली आउंदी है ऐसे जीव दे विच। फिर संसार दे विच जे कोई फौत भी हो जावे जां इस संसार तो अलविदा भी कर जावे, ते गुरमुखो फिर भी ऐसा गुरमुख जिहड़ा वो चिंता नहीं करता। असीं जदों जाने हैं ना किसी के घर, असीं सब तो पहला शब्द वरतते हैं ये माड़ा होया बुरा होया, पर गुरमुखो एक गल याद रखियो, जदों उहदा हुक्म है सारा कुछ उहदी रजा विच चल रहा है, फिर जदों असीं ये गल कह देवांगे माड़ा होया, इहदा मतलब उहदी रजा तो असीं वखरे चल रहे हैं। गुरमुखो उत्थे ये गल कह देनी चाहिए कि साथ छड्ड गया बड़ा चंगा हुंदा सी, साथ छड्ड गया, साडा साथ छड्ड जांदे ने जीव, सानू दुखां विच पा के चले जांदे ने जीव, वो गल वखरी है। सतगुर सच्चे पातशाह फरमान करते हैं, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। कहते चिंता ते तां करिए, लांभे ते तां दईए, माड़ा ते तां आखीए जे अणहोना होवे। अणहोना ते कुछ नहीं हुंदा, जो कुछ होना हुंदा वो ही हुंदा है। ये जिहड़ा संसार दा मार्ग है, भावें कि बस बनस्पति है, भावें जीव ने, भावें जानवर ने, सारियां नूं इस संसार तो अलविदा कहना पैंदा है, जाना पैंदा है संसार तो।
इस करके वो इस गल की भी चिंता नहीं करता। गुरमुख नूं पता है संसार जिहड़ा वा वो नासवान है, इस संसार तो जाना ही जाना, इस करके उस चिंता दे विच नहीं रहिंदा। उसनूं पता लग जाता है इस संसार है की है। आओ गुरमुखो एक गाथा दे राह समझाउण दा यतन करा। साधु ते कुछ उहदे नाल चेले ने। साधु जिहड़ा वो परमात्मा दे नाल इकमिक होया पिया है, पर चेले जिहड़े आम संसारी ने। राह दे विच जांदियां जांदियां एक शराबी टक्करदा है। शराबी साधु नूं वेख के बुरा कहना शुरू कर दिंदा है, गलत कहना शुरू कर दिंदा है, बड़े माड़े बोल बोलदा है ते बोलणों हटदा भी नहीं। गुरमुखो साधु हसदा है। साधु के चेहरे ते कोई गुस्सा नहीं, पर लागे जिहड़े चेले ने गुरमुखो वो लाल पीले होई जा रहे हैं। एक चेला उठ के कहंदा, महाराज सानू आग्या दिओ, इनू असीं सिद्धियां कर दईए। ते साधु कहंदा, भलिया मानसा उहदा जिहड़ा कारज है वो कर रहा है, साडा जिहड़ा कारज है वो असीं करना है। साडा कारज है अगले की भलाई करनी, साडा कारज आ अगले नूं सही रस्ता दसना, तरस करना। असीं ते इस बारे इहो ही सोच सकते हैं कि परमात्मा इस नूं समत बख्शे, माल किस नूं समत बख्शे, परमात्मा इनू नाम बख्शे, ये नाम दे नाल जुड़ जावे। होर असीं इनू कुछ नहीं कह सकते। कोई गल नहीं, ये भी टाइम लंघ जाएगा। गुरमुखो जिहड़ी कोई गल नहीं शब्द है ना, ये भी चिंता तो मुक्त कर दिंदा है मनुख नूं। कोई गल नहीं। ये साधु भी कहंदा कोई गल नहीं, कढ़ लैन दो इसनूं चंगा, गालां कढ़ लैन दो, चंगा माड़ा कह लैन दो, कोई गल नहीं। ते गुरमुखो राह विच जांदियां जांदियां भुख लग जाती है। चेले कहंदे महाराज कुछ खा लईए। साधु कहंदा हाँ खाना तो चाहिदा है, सानू भी भुख लगी है। ते गुरमुखो की हुंदा है, एक पिंड दे विच चले जांदे ने, वो पिंड सारा ही नास्तिकां दा हुंदा है। वो सारा पिंड रब नूं नहीं मनदा। ते गुरमुखो जदों ये पिंड दे विच वड़दे ने, पिंड वालियां नूं पता लग जांदा है साधु आए ने। प्रशादा की देना सी, रोटी पानी की देना सी, आदर की देना सी, धक्के मार के पिंड चों बाहर कढ दित्ता। ते चेले साधु नूं कहंदे महाराज हुण असीं भुखे रवांगे। ते साधु दे चेहरे विच ते हजे भी मुस्कुराहट है, मुख ते हजे भी मुस्कुराहट है। ते पता की कहंदा है, गुरमुखो कहंदा कोई गल नहीं, ये भी समा लंघ जाएगा। चेले जिहड़े गुस्से दे विच लाल पीले ने, पर जिहड़ा साधु आ हजे भी कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, खुश है। बस इहो गल कहंदा कोई गल नहीं, ये भी समा लंघ जाएगा। चेले कहंदे महाराज जी तुहाडे नाल ही आउणा सी, आण के भुखे ही रहना सी, ते सानू आउण दा कोई फायदा नहीं। पर हुण दूर दराडे लंघ चुके सन, आ गए सन, हुण चेले पिछे वापस भी नहीं मुड़ सकते सन। ते गुरमुखो की हुंदा है, राह दे विच जांदियां जांदियां मींह पैना शुरू हो जाता है। बड़ी तेज बारिश हुंदी है। चेलियां दा साधुआं दे सारे कपड़े लिबड़ जाते ने, चोले जिहड़े ने वो सारे दे सारे मींह दे विच भिज जाते ने। ते चेले कहंदे महाराज मींह ने सारे साडे जिहड़े चोले ने वो भ्यों दिते ने, वो दुखी ने। पर इधरों साधु आंदा कहंदा है, कहंदा अमृत वरस रहा है। साधु खुश है, नच रहा है मींह दे विच। चेलियां नूं कहंदा है, कहंदा अमृत वरस रहा है, मींह ना कहो अमृत वरस रहा है, इहदा आनंद लो।
ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਦੁਖੀ ਨੇ,